बच्चों 12th चैप्टर हमने शुरू किया था बुक में, आपकी ये 13th चैप्टर है। ये जो भी है लार्ज स्मॉल ओपन इकोनॉमी हम पढ़ रहे थे विद फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इट्स 12th चैप्टर इन सॉफ्ट कॉपी ओपन इकोनॉमी रिविजिटेड मंडल फ्रेमिंग मॉडल। 6 चैप्टर में हमने ओपन इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इस चैप्टर में हम अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट स्मॉल ओपन इकोनॉमी को हमने स्टडी करना शुरू किया था। स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे अभी बता दें। पिछले या किसी लेक्चर में आपको या किसी बच्चे को स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी तो मैम हो रही है शेयर। चलिए ठीक। देन स्मॉल ओपन इकोनॉमी में हमारा assumption ये था परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट विल बी इक्वल टू वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट and price was taken as given. Our fixed price will not change during our discussion, and we assume that nominal and real exchange rate are the same due to the not any change in the price. The price change नहीं होनी इसलिए nominal और real exchange rate will be also the same. इन सारे assumptions के साथ हमने IS and LM की equations वही जो दोबारा पहले थी हमारे पास वो हमने रिवाइज की थी। उसमें इन प्रीवियस इक्वेशंस में जो डिफरेंस था वो सिर्फ ये था कि उसमें नेट एक्सपोर्ट्स और एक्सचेंज रेट इंक्लूडेड नहीं था। इसके बाद हमने IS की डेरिवेशन देखी थी जो थोड़ी सी डिफरेंस थी ओपन इकोनॉमी में बनस्बत इसके जो हमने क्लोज्ड इकोनॉमी में पढ़ी थी। इन ओपन इकोनॉमी वी टेक रेट ऑफ एक्सचेंज एट y एक्सिस इन पैनल AU में सी है। IS कर्व की डेरिवेशन जो सी है उसकी शेप में कोई डिफरेंस नहीं था ओपन इकोनॉमी में और क्लोज्ड इकोनॉमी में, बट there was a difference that on the y-axis in panel A you see we are taking exchange rate on y-axis instead of interest rate. IS curve shape is same, shape is same and explanation will be different क्योंकि उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी एक्सचेंज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ था y एक्सिस पे when interest rate increases investment decreases and so y decreases, but now we will say that when exchange rate increases net exports decreases so our income level decreases. And then there was LM curve, but in this case when we draw the LM curve against the exchange rate it will be a vertical straight line क्योंकि exchange rate की कम या ज्यादा होने का से LM का शेप का रिलेशनशिप नहीं है। LM is not responsive to higher or lower exchange rate, so LM is a vertical straight line. इसके आप ऊपर वाले पैनल में देखें तो LM has a normal shape in which we are taking interest rate on y-axis, but when we take exchange rate on y-axis then LM is a vertical straight line. Now in Mundell framing model equilibrium will be like this. LM is a vertical straight line, IS downward sloping from left to right, and at the equilibrium level we found the exchange rate or equilibrium exchange rate of this small open economy, and on the y-axis we find the equilibrium income level. Then we analyze the shift in IS and LM, but before that we consider that we are working under floating exchange rate or we are working under fixed exchange rate.
In previous lectures, we saw that we are working under floating exchange rate. And in floating exchange rate, we saw that when expansion fiscal policy is used, IS moved from IS1 to IS2, but exchange rate is floating due to the expansion in domestic expenditure increases or the government expenditure or decreases, but net exports decreases. जब भी आपकी डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर या फिजिकल पॉलिसी एक्सपेंशनरी होती है तो आपकी करेंसी की डिमांड डोमेस्टिकली इतनी बढ़ जाती है और आपकी जो एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज कर जाता है, आपकी करेंसी एप्रिशिएट हो जाती है। करेंसी के एप्रिशिएट होने की वजह से आपकी एक्सपोर्ट्स जो उनसे कम हो जाती हैं, यानी कि डोमेस्टिक आपने जितनी कंजम्पशन बढ़ाई थी इंटरनेशनल लेवल पे आपकी गुड्स की कंजम्पशन उतनी कम होके आईएस की वजह से जो इनकम में इजाफा हुआ था वो दोबारा वापस अपनी जगह पे आ जाता है एंड न्यू इक्विलिब्रियम विल बी एट दिस हायर पॉइंट with higher exchange rate and zero change in income. And fiscal policy seems as not working under floating exchange rate. Under fixed exchange rate, monetary policy increase in money supply will decrease exchange rate and decrease in exchange rate will make our exports cheaper, and that's why our exports increases and income also increases, and monetary policy works to increase the income level under floating exchange rate. So change in money supply increases the income in floating exchange rate. ट्रांसमिशन मैकेनिज्म क्या था मनी सप्लाई का या मॉनेटरी पॉलिसी का अंडर क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी? इन क्लोज्ड इकोनॉमी मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, एंड व्हेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस Y also increases. While in small open economy, when money supply increases, your currency depreciates and exchange rate decreases, and net exports increases. And an increase in net exports will result in increase in national income. So, in small open economy with floating exchange rate, increase in money supply will increase the national income. Trade restrictions, we again studied that if we restrict our imports, then our net exports will increases. NX1 will shift to the NX2 as we are seeing in upper panel, and IS will shift from IS1 to IS2. But instead of increasing domestic national income, it will increase the exchange rate. जब आपकी imports कम होती हैं तो आपकी करेंसी की सप्लाई कम हो जाती है इंटरनेशनल मार्केट में, और उसके कम होने की वजह से उसकी प्राइस बढ़ जाती है, यानी कि एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है, करेंसी एप्रिशिएट होती है। करेंसी के एप्रिशिएट होने की वजह से आपने जितनी इंपोर्ट्स कम की थी उतनी ही आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं, और at the end there is only increase in exchange rate and there is no increase in national income. ये हमने अपने पिछले लेक्चर में सारा कवर कर लिया था और इट वाज ऑल अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आप माइंड में दोबारा रिवाइज कर लें कि फिजिकल पॉलिसी ने नेशनल इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं डाला और ना ही ट्रेड रिस्ट्रिक्शन ने, ओनली मॉनेटरी पॉलिसी increases the income. मैम जी कुछ पूछना था आपसे। हाँ जी पूछें। मैम बुक से जब मैंने ये एलएम का पढ़ा था कि मॉनेटरी पॉलिसी के अगर कर दी जाए तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसमें ना मैम एक लाइन थी जिसपे उसे लिखा हुआ था कि क्लोज्ड इकोनॉमी एंड इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इंक्रीजेस स्पेंडिंग बिकॉज इट लोअर्स द इंटरेस्ट रेट एंड स्टिमुलेट्स इन्वेस्टमेंट। मैम ये समझ नहीं आया कि जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट क्यों कम हो रही है? एक मिनट, ये आपके सामने बुक नजर आ रही है आपको? अच्छा मैं स्क्रीन पे नो मैम। अब यस मैम। इसमें बच्ची क्वेश्चन पूछ रही है, आप मुझे बता दें कहाँ पे आपने ये पढ़ा 12.3 में? मॉनेटरी पॉलिसी का है।
अच्छा मैं भी अंडर निकालती हूँ फ्लोटिंग एक्सचेंज। ये। इससे आपने पढ़ा ये जो यस आपको नजर आ रहा है? जी मैम, ये सेकंड पैराग्राफ में है। अच्छा ये जो लिखा हुआ है आप इसकी बात कर रही हैं? ये तो रिकॉल दैट इन क्लोज इकोनॉमी एंड इंक्रीज इन मनी सप्लाई इंक्रीजेस स्पेंडिंग बिकॉज इट लोअर्स द इंटरेस्ट रेट एंड स्टिमुलेट्स इन्वेस्टमेंट। जी मैम जी। तो ये ठीक बात लिखी हुई है ना कि जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, लेकिन बात हो रही है क्लोज इकोनॉमी की, ये जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है। ये देखिए, इन क्लोज इकोनॉमी एंड इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इंक्रीजेस स्पेंडिंग, उससे आपकी स्पेंडिंग बढ़ जाती है, मनी सप्लाई बढ़ती है, लोगों के हाथों में पैसा ज्यादा आता है, चाहे वो इन्फ्लेशन ही हो, चाहे उनके पास सिर्फ नॉमिनल मनी बैलेंसेस ही बढ़ते हैं। एक दफा इनकम बढ़ती है तो उससे मनी डिमांड बढ़ती है और मनी की स्पेंडिंग इंक्रीज होती है। जब मनी की स्पेंडिंग और मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कम हो जाता है। और जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्टिमुलेट का होने का मतलब है कि इंक्रीज होगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जी ओके मैम। जबकि अगर आपकी ये हमने पढ़ा था स्मॉल ओपन इकोनॉमी होगी तो उसमें ये मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म इसलिए वर्क नहीं करेगा, ये जो बात लिखी हुई है। इसमें हमारा जो इंटरेस्ट रेट है इट इज फिक्स्ड बाय द वर्ड इंटरेस्ट रेट। ये सो इस सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट ने चेंज नहीं होना अगर आपने मनी सप्लाई इंक्रीज भी की है, बल्कि एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, आपकी करेंसी की सप्लाई बढ़ने की वजह से करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, और करेंसी के डेप्रिशिएट ये लिखा हुआ है विच लोअर्स द एक्सचेंज रेट एंड रेजेस द इनकम। करेंसी की डेप्रिशिएट होने की वजह से आपकी नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी क्योंकि अब आपकी एक्सपोर्ट्स चीपर हैं, और आपकी नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ने की वजह से आपका इनकम लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक। जी नेक्स्ट इज हाउ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वर्क्स। अभी तक हमने जो पढ़ा पॉलिसीज का ओपन इकोनॉमी में, वी वर स्टडीइंग अबाउट द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। वंस अगेन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है कि जो आपकी करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई है इंटरनेशनल लेवल पे, उस पर जहाँ उसकी प्राइस फिक्स हो जाए उसमें गवर्नमेंट या स्टेट बैंक कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान की बात करें, डॉलर 165 के 170 180 वट एवर इट्स गोइंग ऑन, सो इट्स इंक्रीजिंग, और इंक्रीज ही होता है, यूजुअली डिक्रीज नहीं होता। डेवलप्ड कंट्रीज में इट मे बी इंक्रीजिंग मे बी डिक्रीजिंग। लेकिन फिक्स एक्सचेंज रेट मीन कि गवर्नमेंट फिक्स दैट डॉलर विल बी ऑफ 100 रुपीज एंड इट विल नॉट चेंज फ्रॉम दिस। अब ये क्वेश्चन ये है कि फिक्स एक्सचेंज रेट हाउ दिस वर्क्स, ये कैसे होगा कि आप फिक्स कर दें कि डॉलर 100 का उसे 100 का ही रहना। इसे कहते हैं नाउ अज्यूम दैट फेड या गवर्नमेंट, हम इसे कहते हैं वांट टू पेग द डॉलर टू द येन। यहाँ पे चूंकि डोमेस्टिक करेंसी डॉलर है इसलिए वो डॉलर की बात कर रहे हैं, चूंकि अमेरिका की बात हो रही है, और पैक करने का मतलब होता है किसी को किसी चीज से जोड़ देना। नाउ अज्यूम दैट फेड वांट्स टू पेग द डॉलर टू द येन एट ई इज इक्वल टू 100। ये गवर्नमेंट अगर फिक्स करना चाहती है कि 100 रेट है, मीन के डॉलर की प्राइस जो सी है वो 100 येन होगी, इससे कम या ज्यादा नहीं होगी। इट मीन्स it must promise to exchange dollars for yen at the price or vice versa। मीन के गवर्नमेंट ने अगर ये फिक्स कर दी है प्राइस, इस सिचुएशन में जब भी गवर्नमेंट से कोई डॉलर खरीदना या बेचना चाहेगा तो या येन खरीदेगा या बेचेगा तो गवर्नमेंट खुद इसी प्राइस पे करेगी। अगर मैं आपको इसको पाकिस्तान की एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये ऐसे है कि अगर गवर्नमेंट डिसाइड करे कि डॉलर 100 रुपीज़ का होगा तो ये सिर्फ तब पॉसिबल है कि कोई भी शख्स अगर 100 रुपीज़ लेके सेंट्रल बैंक जाए तो सेंट्रल बैंक इस बात पर पाबंद है कि वो 100 रुपीज लेके उस शख्स को $1 दे देगा, चाहे वो $1000 मांगे, $1,00,000 मांगे, लेकिन प्राइस 100 रुपीज ही होगी और सेंट्रल बैंक को वो $100 जो उनसे वो डॉलर जो उनसे वो देने पड़ेंगे ताकि एक्सचेंज रेट 100 रुपीज पे फिक्स रहा रहे। जब 100 रुपीज का डॉलर बैंक से मिल रहा होगा तो कोई भी शख्स बैंक से बाहर 160 170 का डॉलर नहीं खरीदेगा। इसमें एक डेवलपिंग कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने के पास स्टेट बैंक के पास इतने डॉलर होने चाहिए, और हमारा तो मसला ही ज़र मुबादला का है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अगर हमारे पास इतने होंगे तो हम उसे मेंटेन कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, तो अगर वो ही फिक्स करना चाहता है कि डॉलर की प्राइस 100 येन होगी तो उसके लिए क्या है, दे नीड टू डू वन थिंग, टू थिंग यहाँ पे आपकी मैंने हाईलाइट की है। नंबर एक, डॉलर
इट शुड हैव डॉलर विच इट कैन प्रिंट, मतलब डॉलर जो हमसे इनको चाहिए होंगे तो डॉलर को वो प्रिंट कर सकते हैं जितने भी चाहिए, क्योंकि वो उनकी डोमेस्टिक करेंसी है। सेकेंडली दे नीड येन विच मस्ट हैव ऑब्टेन्ड प्रीवियसली, जो कि पहले से उनके पास होने चाहिए, जो वो ट्रेड से या कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो से कोई भी कंट्री हासिल करता है फॉरेन करेंसी। As long as the federal government has enough yen and is willing to print enough dollar, then it can maintain its exchange rate equal to 100. कि जब तक गवर्नमेंट जो सी है उसके पास एनफ फॉरेन करेंसी हो और अपनी करेंसी वो जितनी चाहे प्रिंट कर सकता हो, तो आप एक्सचेंज रेट मेंटेन कर सकते हैं। Now what happens if market exchange rate is too low? अगर मार्केट एक्सचेंज रेट बहुत कम होगा तो जाहिर है कि गवर्नमेंट को करेंसी खरीदनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है, और अगर बहुत ज्यादा होगा तो भी गवर्नमेंट को या स्टेट बैंक को उसी प्राइस पे जो assume that market exchange rate is 90 and government decided that it should be 100, then arbitrageurs क्या होते हैं, आप बाद में इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ेंगे कि ऐसे लोग जो सिर्फ करेंसी का बिजनेस करते हैं और जहाँ पे करेंसी चीप मिल रही हो वहां से खरीद के जहाँ पे वो महंगी बिक रही हो वहां पे बेच देती है। तो आर्बिट्रेजर क्या करेंगे कि अगर उन्हें लगेगा कि आउट ऑफ द मार्केट जो सा वो डॉलर सस्ता मिल रहा है, अगर पाकिस्तान की एग्जांपल लें 90 रुपए का, तो वहां से खरीद के बैंक को बेच के बैंक से 100 रुपया ले लेंगे। और अगर उन्हें लगे कि डॉलर बैंक से सस्ता मिल रहा है तो बैंक से 100 रुपए का डॉलर लेंगे और ओपन मार्केट में बेच देंगे। इस तरह जिस जगह पे भी प्राइस कम या ज्यादा होगी वो फिर मेंटेन होके वही बन जाएगी जो कि बैंक ने डिसाइड की है। अगर डॉलर आपकी ओपन मार्केट में 150 रुपीज के और बैंक जो है वो 100 रुपीज का डॉलर दे रहा हो, तो सब लोग ओपन मार्केट से डॉलर जो है वो बैंक से डॉलर खरीदेंगे और ओपन मार्केट से ज्यादा डॉलर दे। लेकिन इस तरह मेंटेन रखना एक बहुत लंबे अरसे के लिए डेवलपिंग कंट्रीज के को यूजुअली पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम इसी तरह से काम करता है। और इस सिचुएशन में डॉलर हैव द मार्केट एंड वाइंड अप एट द फेडरल वेयर दे आर आउट ऑफ सर्कुलेशन, कि अगर आपके डॉलर जो है बहुत ज़्यादा सस्ते हैं तो लोग वहाँ से खरीद खरीद के फेडरल बैंक को देना शुरू कर देंगे, उनसे जो जान ज़्यादा प्राइस मिल रही है वो ले लेंगे और सारे के सारे डॉलर कह रहे हैं कि बैंक में शिफ्ट हो जाएंगे। इन दैट केस मनी सप्लाई विल श्रिंक। की पॉइंट एम इज नो लॉन्गर एन एक्सोजेनस वेरिएबल व्हेन ई इज फिक्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका एक्सचेंज रेट फिक्स है तो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मनी सप्लाई जो सी है उसका एक ही काम है कि वो एक्सचेंज रेट को मेंटेन रखे। अब आपकी मनी सप्लाई एक्सोजेनस वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, बल्कि वो आपकी एक्सचेंज रेट से जुड़ा हुआ है। नाउ वी अंडरस्टैंड कि हाउ फिक्स एक्सचेंज रेट्स वर्क। जब फिक्स एक्सचेंज रेट को हमने समझ लिया तो अब हम देखेंगे कि अगर आपको फिक्स एक्सचेंज रेट है तो मनी सप्लाई आती है, आपस में इनका क्या रिलेशनशिप है। कि वी सेज कि व्हेन there is fixed exchange rate, m is not an exogenous variable. In panel A you see the equilibrium exchange rate is greater than the fixed exchange rate. आपने assume किया कि इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट जो मार्केट फोर्सेस ने डिसाइड किया है वो हायर है, जहाँ पे आई एल एम वन और आई एस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट अबव है। लेकिन नीचे जो लाइन है ब्लू स्ट्रेट लाइन, ये सेंट्रल बैंक ने फिक्स किया कि एक्सचेंज रेट इससे ज़्यादा नहीं होगा। एक्सचेंज रेट को इस लेवल पे लाने के लिए जो कि मार्केट में हायर है, गवर्नमेंट को मनी सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी और एल एम विल शिफ्ट टू ये रेड लाइन एल एम टू एंड एक्सचेंज रेट विल कम डाउन। नाउ इफ एक्सचेंज रेट इज लो इन पैनल बी, आप देखें तो एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए जो कि फिक्स है और गवर्नमेंट ने यहीं पे फिक्स रखना है, फेडरल बैंक विल हैव टू डिक्रीज द मनी सप्लाई एंड LM will shift from LM1 to LM2 backward and exchange rate will come back where government want to keep it. Now nominal versus real exchange rate. Remember E is the nominal exchange rate, वो हमने साइन रखा हुआ था। Central bank cannot peg real exchange rate in the long run. और मतलब इन द लॉन्ग रन में रियल एक्सचेंज रेट की परचेजिंग पावर क्या है एक करेंसी की, वो सेंट्रल बैंक फिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि अब जितना भी मतलब करेंसी छाप छाप के नोट प्रिंट आउट आप करते जाते हैं और आप एक्सचेंज रेट मेंटेन रखते हैं, लेकिन एक करेंसी की स्ट्रांग कैसे होती है जब उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो। तो इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो ही उस कंट्री में चीज़ें जो होती हैं वो चीपर अवेलेबल होंगी। और चीज़ों की
डिफरेंट कंट्रीज में जो प्राइस लेवल है उसके रेशो से हमें पता चलता है कि व्हाट इज द रियल एक्सचेंज रेट। तो इन द लॉन्ग रन कोई भी गवर्नमेंट रियल एक्सचेंज रेट को फिक्स नहीं कर सकती, ये सिर्फ नॉमिनल एक्सचेंज रेट है। बट अगर हमने ये ज्यूम किया हुआ है कि प्राइसेस लेवल आर फिक्स्ड इन बोथ कंट्रीज, देन सो व्हेन नॉमिनल एक्सचेंज रेट फिक्स करेंगे तो रियल एक्सचेंज रेट खुद ब खुद फिक्स हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ये अजम्पशन है, ये रियलिटी नहीं है कि प्राइस लेवल इज फिक्स्ड, इट्स नॉट चेंजिंग ओवर टाइम। ये अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें अब हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि फिक्स एक्सचेंज रेट काम किस तरह से करता है। तो इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, तो हम फिर ये पढ़ेंगे कि फिक्स एक्सचेंज रेट में डिफरेंट पॉलिसी ऑप्शन कैसे काम करते हैं। माइंड में ये बात रखते हुए कि जब हमने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पढ़ा था तो फिजिकल पॉलिसी और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस दोनों जो उनसे काम नहीं कर रहे थे, उनसे कोई भी आपकी आउटपुट में चेंज नहीं आया, सिर्फ आपके एक्सचेंज रेट कम या ज्यादा हुए हैं। चलिए मैं आपको इसमें थोड़ा सा पॉलिसी ऑप्शन बता देती हूँ, पीछे हमारा टाइम वैसे भी कम है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि कल आप इसको रिवाइज फिर करके आइएगा ताकि कल हम इसे क्लियर। Now we see what we can do with the fiscal policy under fixed exchange rate. In this diagram, you see that if exchange rate is fixed by this horizontal blue line, the exchange rate ने इससे कम या ज़्यादा नहीं होता, it is fixed by the state bank or central bank or by the government. Number one, we will start from here with the fixed exchange rate. LM1 is vertical straight line which is in open economy, and IS1 blue lines, ये सारी 3 blue lines जहाँ intersect करती हैं, it is the original equilibrium. Now government decide to apply a expansive fiscal policy. With the expansive fiscal policy, IS1 shift to IS2 and new equilibrium will be at Y2 because exchange rate is fixed. Exchange rate अब increase नहीं होगा, तो इसको fix रखने के लिए जब आपकी गवर्नमेंट एक्सपेंशन इंक्रीज होती है तो आपकी डोमेस्टिक मनी डिमांड इंक्रीज होती है, जिसको फुलफिल करने के लिए स्टेप 3 आप देखें कि मनी सप्लाई will be increased and LM curve will shift to the right, and new equilibrium is where these two red lines are intersecting this horizontal blue line, and at the end result income increase from Y1 to Y2 under fiscal policy under fixed exchange rate. In floating exchange rate fiscal expansion ने कोई भी Y को इफेक्ट नहीं किया था, under fixed exchange rate fiscal policy can increase the national income. Fiscal expansion puts upward pressure on the interest rate as we have seen before. Capital begins to flow into the domestic country. जब आपकी फिजिकल एक्सपेंशन होती है तो आपकी डोमेस्टिक कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की कोशिश करता है, वो हमने बढ़ने नहीं देना। इट विल बी द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट। कैसे कि आपकी कंट्री में जब भी आपका एक्सचेंज रेट इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो आपका कंट्री कैपिटल या सरमायाकारी को अट्रैक्ट करेगा और फॉरेन से कैपिटल आपकी कंट्री में इनफ्लो करेगा, जिससे आपका एक्सचेंज रेट जो है उस पर अपवर्ड प्रेशर होगा। मॉनेटरी पॉलिसी ने प्रॉमिस किया हुआ है कि आपने एक्सचेंज रेट को बढ़ने नहीं देना, so money supply will increase and LM will shift to the right and income level will increase. लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट काम नहीं कर सकती, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का एक ही पर्पज है अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दैट इट विल मेंटेन द एक्सचेंज रेट एट द गिवन लेवल. Now if LM shift to the right due to any reason, it will have a pressure on the exchange rate to decrease, and to maintain the exchange rate LM will have to shift back. अगर मनी सप्लाई किसी भी वजह से बढ़ी है तो LM जो है वो दोबारा it has to shift back. For example, increase in money supply puts downward pressure on rate of interest and therefore it puts downward pressure on exchange rate. For example, dollar gets weaker if the government decides to print more of them. मतलब मनी सप्लाई बढ़ाते हैं, आपकी करेंसी जो है डेप्रिशिएट होती है। प्रिंट मनी सप्लाई बढ़ाना और मोर करेंसी प्रिंट करने का एक ही मतलब है। However, central bank has promised to trade currencies at the given exchange rate. Now domestic currency therefore return to the central bank and carried by arbitrator. कि आपकी करेंसी जब सस्ती हो जाती है तो लोगों के पास जो करेंसी है वो बैंक को वापस बेचना शुरू कर देते हैं। In final, या at the end, nothing happens to money supply, nothing happens to Y.
And bottom line is that the money supply is no longer under control of the federal or the state bank when exchange rate is fixed. What about the trade policy under fixed exchange rate? If we restrict our imports, IS curve will shift to the right side because net exports will increase, and shifting of the IS curve will have a pressure on exchange rate to increase. अब exchange rate अब increase करने की कोशिश करेगा तो स्टेट बैंक ने डिसाइड किया कि it will not let it increase.